Assalamu alaikum. Welcome to Bottom Line, and we are here with a new program. I am Bilal Kiani. I'm joined with Faizi as always, and today we are going to have a bit of different program. आज हमारा जो program का format है, that is different than the others because आज हमने जी बात करनी है two of the greats of cricketing world, two of the best the cricket has ever produced. It's a clash of the titans, and we are talking about the legends, the ultimate Sir Brian Charles Lara and Sachin Ramesh Tendulkar. Yes. It's ये दुनिया में ना like जो भी cricketing world है, between the fans it's a big question, who is better than who, कौन बड़ा है यार, who is the better batsman, who is the better player. So obviously हमारा भी आपस में ये थोड़ा सा आपस में डिबेट रहेगी आज. फैजी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहता है. फैजी क्या ख्याल है? It's a very healthy sign, Bilal. Yes. I personally feel that when you talk about two greatest, batsmen which the world has seen, I mean, one a left-handed and the other a right-handed. So I mean, both अपनी capacity में they both are very good players. लेकिन once you just compare them ना, तो आप देखते हैं कि अच्छा किसको किसके ऊपर किस तरह से edge है. तो we'll obviously talk about them. I mean, if you just talk about me ना, तो I rate Tendulkar higher than Lara. Okay. Reason being that, as I mean, somebody scoring 34,000 runs, and of course Lara maybe both obviously उसके पास records भी हैं और he was very elegant as well. लेकिन I'll personally say that Sachin Tendulkar is better than Brian Charles Lara. और अगर हम रिकॉर्ड को उठा के देखें, आई होप दैट यू विल नॉट एग्री विद इट. रिकॉर्ड्स तो उधर है बिकॉज़ Obviously I will not agree with you. अगर आप रिकॉर्ड्स को उठा के देखें तो somebody who's scoring 100 मतलब 100 सेंचुरीज जिस बंदे ने की हो, तो I personally feel that he is Sachin is I guess far better than Lara. So we'll obviously talk about it. आप मुझे बताएं कि why do you think that Lara is better than Sachin? What is your take on it? फैजी has already revealed कि जी मुझे तो लारा पसंद है. और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, cricket is not all about stats. Obviously cricket is a game which is like watched in across the globe. दुनिया में बहुत से मुल्क देखते हैं. Obviously सब कॉन्टिनेंट में सब ज्यादा देखी जाती है. इसी वजह से मेरे ख्याल में तेंदुलकर के फैन ज्यादा होंगे क्योंकि अब इंडिया के 1.5 बिलियन तो खाली पॉपुलेशन है. बट अगर हम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में ऑल ओवर देखें तो the people rank Lara more than Tendulkar. वजह ये है क्योंकि लारा के अंदर फ्लैम्बॉयंस थी, लारा के अंदर जो क्रेज था, लारा के अंदर जो स्किल था, लारा का जो स्टाइल ऑफ प्ले था, that was completely different to Tendulkar. Yes, you're right, the guy has scored 34,000 runs, 100 hundreds. तो वो स्टैट्स में तो मैच नहीं हम कर रहे. We're not those pundits जो बात करेंगे जी फलाने की एवरेज इतनी थी इतनी. Obviously वो भी मैटर करती हैं चीजें. वो सबसे ज्यादा बिलाल में नहीं, सबसे ज्यादा नहीं करती. That is where it differs. At the end of the day, अगर आप देखें somebody who is very elegant and treat to watch. I mean, I'm not talking about Lara at this point of time. Obviously लारा की तो वो नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बंदा कोई एलिगेंट हो ना, he is not scoring runs ना, तो at the end of the day people want to watch somebody who scores runs. फैजी अब लारा के केस में हम अगर देखें तो लारा ने भी बहुत स्कोर किए हैं. एक मैच में यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, 400 किया. हम यहाँ पे कंपैरिजन ये नहीं कर रहे कि कहीं किसी की 20 की एवरेज और किसी की 50 की एवरेज है. वी टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स में डिफरेंस है. ठीक है, किसी दोनों 50 की एवरेज कर रहे हैं, 52 लारा की और 53 दोनों 50 की एवरेज कर रहे हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में वी टॉकिंग अबाउट ग्रेट्स. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. हां Bilal, then again this is something somebody can be a greater player according to me and he could be an ordinary player according to Yes. you. So ये मतलब once we are discussing it ना, तो we will obviously discuss. I'll be discussing the positives of Tendulkar, of course. Yeah. कि कैसे I think that he is greater than Lara. आप अगर देखें एक बंदा है, वो both have actually debuted against Pakistan. 89 में ही डेब्यू है. और somebody who's played for almost 22 years, 22 साल एक बंदा खेलता रहा है. आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी कंपेटिटिव है. आप देखें, यू टॉक अबाउट somebody इतनी उसकी फिटनेस देख लें सचिन की आप एवरेज देख लें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. आई मीन ऑस्ट्रेलिया वाज 1919 से लेकर ऑब्वियसली 90s की और 2000s की बेस्ट टीम है.
900 I guess against Australia. He has scored the maximum runs as an individual batsman against Australia and Sri Lanka, 3000, I guess 3300. तो अब आप देखें वंस ऑन दी अदर हैंड आप लारा को देखें तो लारा ने एक और दो इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को बहुत फेंटा होगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती हमें लारा में जो कि आपको तेंदुलकर में नजर आती है इन टर्म्स ऑफ रन्स. तो आई पर्सनली फील दैट ऑब्वियसली तेंदुलकर हैज प्लेड मोर नंबर ऑफ गेम्स देन लारा, बट स्टिल अगर आप एवरेज में देखें, आप नंबर ऑफ 50s उठा के देखें, नंबर ऑफ सेंचुरीज उठा के देखें, तो you will find कि तेंदुलकर. I get your point. Like your point is coming in again and again. You're talking about the stats कि जी एक बंदे के रन ज्यादा है और उसने obviously अगर रन elegant as well. उसके रन ज्यादा है, नहीं, he's not elegant. That's your point of view. I differ with that. I don't think so. Tendulkar is elegant. In fact, I feel that Tendulkar is a bit boring to watch. Sometimes he gets a bit boring. He's so much copybook. He is a great batsman. He's obviously सबसे ज्यादा runs किए हैं तो भाई कोई आम batsman तो नहीं होगा. Boring भी relative term है. Boring could somebody could be boring. Yes, I like people who have X factor. ठीक है. लारा के अंदर जो वो एक X factor था ना, when we talk about Tendulkar and Lara, चलो let's compare them in terms of how they play their cricket. लारा ने जिस तरह क्रिकेट स्टार्ट की, he ended his cricket in the same way. Like twilight of the career, Lara was as aggressive as he was when he started his career. लारा के जो लास्ट खाली जो ईयर है उसमें उसके डबल हंड्रेड्स दो हैं, ठीक है, 3 हंड्रेड्स है, which shows कि लारा की एवरेज जो थी वो that was around about 45-46 in his last year, where we are talking about a person who is going to end his career. तो उस टाइम पे आपको नेशनली डिक्लाइन नजर आ रहा होता है जो तेंदुलकर में हमें नजर आया. तेंदुलकर की लास्ट ईयर में एवरेज वाज लाइक 35. हाँ, ये नजर आ रहा है. फिर ओवरऑल जब हम एवरेज, देन अगेन यू हैव जस्ट कम टुवर्ड्स एवरेज. नो मैं ओवरऑल एवरेज देखें तो फिर तेंदुलकर की ज्यादा. मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा. यू डिडंट गेट माय पॉइंट. माय पॉइंट इज दिस कि स्टाइल ऑफ प्ले, यानी लारा ने अपना स्टाइल ऑफ प्ले नहीं बदला, उसने अपना एग्रेसिव इंटेंट नहीं बदला. अगर उसने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है पहला, ठीक है, 94 में, और 10 साल बाद जब दोबारा रिक्लेम किया तो दोनों दफा स्टाइल ऑफ प्ले सेम था. वो छक्का मार के ही अपना रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है. तेंदुलकर ऑन द अदर हैंड ही गॉट अ बिट बॉक्ड डाउन जब वो एंड ऑफ द करियर आया. शुरू में तेंदुलकर भी बड़ा फ्लैम्बॉयंट था, ठीक है. हमारे पास डेजर्ट स्टॉर्म की इनिंग्स है, आई नो अबाउट दैट. वो जो ऑस्ट्रेलिया को उसने शारजा में, इट्स एन एपिक इनिंग्स. हां, और सिडनी में मारा 244 टेस्ट में, एक टेस्ट में मारा, एंड ही स्कोर्ड 33 बाउंड्रीज इन दैट. और वो उसमें वॉन और मैग्रा और फ्लेमिंग, और वो आपको ऐसे लग रहे थे कि आई मीन द बेबीज आर जस्ट बॉर्न इनटू समबडी. आई मीन ही वाज एन, ऑल्दो वो उसकी सीरीज इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लास्ट मैच में ही केम आउट एंड यू नो ही बैट्ड ईच एंड एवरी बॉलर. तो तेंदुलकर, I mean on a given day he was like he was more one of the brutal batsmen you can just find in the world. जैसे तेंदुलकर है ना, तेंदुलकर on a given day नहीं, तेंदुलकर almost on any day, every day. Tendulkar was that consistent. हाँ हुआ, लेकिन Tendulkar was Mr. Consistent. You can say that. He had a career of that long because he was consistent. He was scoring runs consistently. Why Lara for me? Lara for me because he had ups and downs in his career. जिस तरह से अब जब इंजरी होगी, इंजरी के बाद आया 2001 में यार जब वो श्रीलंका टूर है, I just remember that. लारा का वर्स्ट टाइम पीरियड चल रहा था. लारा की उस साल में 29 की टेस्ट एवरेज थी, द लोएस्ट. और मुरलीधरन वाज एट हिज प्राइम, 75 विकेट्स इन अ सिंगल ईयर, हाईएस्ट बाय एनी श्रीलंकन बॉलर. लारा गया, Lara scored 688 runs in that series. West Indies lost that series 3-0 because other side जो player थे वो तो ऐसे आउट हो रहे थे जिस तरह उनको खेलना ही नहीं आता. पर लारा ने अपनी dominance stamp की to the greatest spinner. वार्नी को इसी तरह से. Lara was a killer against the spin bowling. So have you ever heard Murli? What does Murli say about both of them? Murli, I was just listening to him. He said that, you know, it was very difficult for me to just bowl against Tendulkar because he used to, and Tendulkar, both are very good players against the spin. अब हम ये वाला comparison तो नहीं कर सकते. I mean, technically दोनों बहुत बड़े. That's your point of view, and if you're going to quote players, so I could quote more players who said that Lara was better. I could quote you more players. There are fast bowlers who are quoting that Lara was like. Lara को as this is a common acceptance across cricketing world के जो better batsman था against the spin, that was Lara. ये एक common acceptance है. You can disagree and we are here to disagree with each other. But at the end of the day, मुझे ये लगता है और बहुत से लोगों को ये लगता है कि
स्पिनर्स को तो वो ही वाज इन कंप्लीट डोमिनेंस अगेंस्ट द स्पिनर्स। फास्ट बॉलिंग को अगर देखा जाए, लारा इन हिज प्राइम कुड किल एनी अटैक। और फिर दूसरी मेरा जो आर्ग्यूमेंट है फैजी, लारा प्लेड इन अ वेस्ट इंडियन साइड व्हिच वाज डिक्लाइनिंग एट दैट पॉइंट। लारा के साथ यार कोई बड़े प्लेयर्स नहीं थे जब लारा के प्राइम ईयर्स आए ना, तो लारा के साथ बैट्समैन कोई अच्छे नहीं थे। Bilal, we are just talking about the individual performance. Now here we are just talking about, we are not comparing two teams. We are comparing two players. I mean, we are comparing Lara with Tendulkar. So no matter which team are you, आपको याद है? I hope you remember Johnson. Yeah. Neil Johnson. Yes. He was the only player who used to play for like, याद है ना आपको? बैटिंग भी ओपन करता था, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। हम इंडिविजुअल स्पोर्ट पे भी प्रोग्राम नहीं कर रहे ना। जब टीम स्पोर्ट में आप we are discussing इंडिविजुअल्स हु प्लेड इन अ टीम स्पोर्ट, और जो टीम स्पोर्ट होती है उसमें बाकी मेंबर्स ऑफ द टीम का इंपैक्ट होता है। वो इंपैक्ट करती है। यार आपके साथ अगर द्राविड खेल रहा है, आपके साथ गंगोली खेल रहा है, लक्ष्मण खेल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है? और आपके साथ एबल हाइंड्स खेल रहा है। लेकिन एक और भी बात है, अगर इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग ना, अभी अब कोहली के साथ सारे बड़े लोग खेल रहे थे, कोहली नहीं परफॉर्म कर रहा था, इट इज द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज वेल ना, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव इंडिविजुअल, यू हैव टू। अब आप ये कहेंगे फॉर एग्जांपल वसीम की जो है वो 600 विकेटें हैं, उसकी रीजन ये है कि एक साइड पे सक्रियन होता था, एक पे शोएब, ये है रीजन, इट्स अ बिग रीजन। लेकिन वसीम एंड वकार डिड वेल बिकॉज़ दे हंटेड इन पेयर्स। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो इक्वल चांस अगले प्लेयर को भी तो है ना। फिर आप वकार की भी उतनी होनी चाहिए थी, शोएब की भी होनी चाहिए थी। I do not agree with you on this point कि यार ये खाली इंडिविजुअल को डिस्कस करें तो टीम का इम्पैक्ट नहीं आएगा। टीम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। टीम में उस प्लेयर की once we are discussing two players ना, तो we need to just discuss them. Our West Indies team was on decline, लेकिन Lara was one of the best player in the world. Yes. So the best player has to show ना। But he had more burden to carry. Tendulkar had better batsmen around him. हाँ लेकिन अब देखो ये whenever we talk, अगर हम टेनिस की बात करें, having a debate Federer versus Nadal, तो मैं मानूंगा यार इंडिविजुअल स्पोर्ट है, हर बंदे की अपनी है। When we talking about even football, मेसी रोनाल्डो भी जब डिबेट हो रही होती है तो ये डिबेट हो रही थी यार मेसी प्लेड इन अ बेटर टीम, रोनाल्डो प्लेड इन अ फार लेस सुपीरियर टीम, तो इस वजह से रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस को ज्यादा हाईलाइट। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन डिसएग्री विद दैट। सेकंड थिंग व्हाट आई फील इज दैट कि लारा का जो फ्लैम्बॉयंस था, ठीक है, उसको मैच तेंदुलकर ने कभी भी नहीं किया। तेंदुलकर वाज कॉपी बुक, तेंदुलकर वाज लाइक बैट्समैन जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हो कि यार ये रोज परफॉर्म करेगा। लारा when he is on his day, when he is on song, then there is not a better batsman to see other than Lara. अगर if I would have a last chance और मेरे पास ये चांस हो कि मैं किसी एक बैट्समैन को देखूं खेलता हुआ, I would pick Lara over Tendulkar. नहीं, that's my point of view. हाँ, but still then again आपने अगर for example if I have to bat तो I'll be choosing Tendulkar. Reason being that is बंदा कंसिस्टेंट है और ऑन द गिवन डे तेंदुलकर भी बहुत ब्रूटल है। तेंदुलकर ने आपको याद होगा, I mean they were just playing against us in the World Cup और कैसे मारा था, he scored I guess 130 और उसने शोएब को बैट के काम उसमें 100 नहीं हुआ था, 98 पे आउट हो गया था, लेकिन मारा बहुत था। You're right. उसमें मारा बहुत। I remember that. I'm not saying Tendulkar is a lesser batsman. I'm just saying कि when it comes between Lara and Tendulkar, I'm not picking Lara. ये तो डिबेट ही नहीं है ना। डिबेट यहीं जब स्टैट सामने आ गए, फैक्ट्स को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। डिबेट इस चीज की हो ही नहीं रही। किसका बेटर था? लारा की गेम आई हुई है, लाइक लारा की वीडियो गेम्स आई हुई है। दैट वाज इतना बड़ा इम्पैक्ट एक बंदा छोड़ के जा रहा है क्रिकेट पे कि उसके नाम की वीडियो गेम्स चल रही हैं। भाई वो तो इंडिया में अब तेंदुलकर को पूछना लोग शुरू कर रहे हैं, तो अब उसकी he is also worshipped in India. लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वर्ल्ड ना। अब ये जो वीडियो गेम्स हैं कैरिबियन ने तो नहीं लॉन्च की है। देखो बायसनेस तो होगी ना, बीइंग एन इंडियन ऑब्वियसली आई वुड रेट तेंदुलकर ओवर। आई एम नॉट अ इंडियन ना, बट आई एम रेटिंग हिम बिकॉज़ देखो somebody the way I reason being that I like तेंदुलकर is कि आप देखो एक बंदे ने यार 34,000 स्कोर किया हुआ, नहीं is so down to the earth। मैंने कभी उसको किसी बॉलर को मतलब आगे से मुड़ के स्लेजिंग करते नहीं देखा, कुछ अब्यूजिव कभी उसको होते हुए नहीं देखा। और आई हैव ऑलवेज सीन हिम लाइक समबडी, मतलब जो आता है अपनी एंड जब वो अपनी गेम की पीक पे भी था तेंदुलकर ऑन द गिवन डे 200 भी करके, एंड ही यूज्ड टू कैरी हिज बैट एंड यू नो मूव लाइक यू नो अ वेरी डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ क्रिकेटर। Whereas Lara तो फिर वो जरा एक यही तो मैं कहता हूँ ना, that is why I like Lara more. Tendulkar is boring.
लारा की देखो, स्लेजिंग इज लाइक ब्यूटी ऑफ द गेम व्हिच इज फेडिंग अवे फ्रॉम प्रेजेंट क्रिकेट, वो फेड होती जा रही है। पुराने टाइम में वो जो स्लेजिंग थी वो मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, दैट एक्चुअली एड्स टू द फ्लेवर ऑफ द गेम। ऑडियंस क्या देखेगी यार, ऑडियंस को तो यही स्पाइस चाहिए ना, यू नीड स्पाइस इन योर फूड। बिलाल, क्रिकेट इज बेसिकली A gentleman game? No, it is not. Sorry, I'm sorry. It's not a gentleman game. ये कोई gentleman game नहीं है. It's a game जब किसी भी चीज में commercialism आ गया, आपने ऑडियंस को बेसिकली लारा मेड टेस्ट क्रिकेट वॉचेबल, लाइक जो उसकी इनिंग्स थी। मेंटल स्ट्रेंथ की बात करो फैजी, क्या हाईएस्ट स्कोर है जी तेंदुलकर का? 248 I guess, like टेस्ट क्रिकेट में। Then again you are coming to the stats. नहीं, I'm coming to the stats. I'm just अगर हम स्टैट्स को कंपेयर करेंगे तो there are a lot of things which you know Lara is not कर रहा हूँ having. मेंटल स्ट्रेंथ की, आई एम जस्ट सपोर्टिंग थ्रू स्टैट। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मेंटल स्ट्रेंथ की। मेंटल स्ट्रेंथ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बंदा हाईएस्ट टेस्ट स्कोर करता है, दैट इज अ डिटर्मिनेशन जो उसने किया। 10 साल बाद वो वही फीट रिपीट करता है। यहां पे मेरा मकसद ये है कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लारा डिड नॉट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, he did not deteriorated। तेंदुलकर डिटेरिएट हुआ है भाई। नहीं, 2010 में तेंदुलकर ने आके 200 स्कोर किया वनडे इंटरनेशनल में, आउट ऑफ नोवेयर। आई मीन व्हेन वो करवाया नहीं, दिस इज व्हाट यू कैन से ना। अब आप देखेंगे कैसे करवाया। अब ये तो हमारा वो ये दिस इज समथिंग डबल हंड्रेड्स। ओके डबल हंड्रेड्स वन डे क्रिकेट, ऑब्वियसली तेंदुलकर वाज द फर्स्ट वन टू हिट दैट मार्क। ऑब्वियसली दैट accolade should have gone to Tendulkar. He is the best batsman, which ODI batsman अगर मैंने pick करना हो ना, I might go with you. ODI में ना, I might go with you. When I'm picking a test cricketer, ठीक है, as a test batsman. लेकिन टेस्ट क्रिकेटर के लिए आपको एवरेज यू विल नॉट बी लुकिंग एट दैट। एवरेज में इतना डिफरेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं टॉप स्कोर्स की, 400, it's like यार, it's marathon, it's someone running a marathon। फिर 500 in domestic cricket। और अगर आपकी बात स्टैट्स की ही करते रहे ना, तो फैजी फिर तो फवाद आलम इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, तो नहीं आपके ख्याल में फवाद हमारी डोमेस्टिक का बेस्ट एवर है? नहीं, देखो फवाद का पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मार्क है ना। उसने तो इसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया। नहीं, वो आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्स। नहीं, यू जस्ट टॉक अबाउट द स्टैट्स ना। और प्लेयर्स तो जो अच्छा प्लेयर होता है, हमारा प्लेयर तो डायरेक्ट जाके वो टेस्ट खेलने लगता है, वो टेस्ट क्या पहले मिल जाती है। नहीं, इंजी ने बहुत टेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, यूसुफ ने भी बहुत खेली हुई है, यूनुस ने बहुत खेली हुई है। दे हैव आल्सो फवाद आलम पिछले 15 साल से डोमेस्टिक ही खेल रहा है। यू आर राइट, 4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। यही तो बताना चाह रहा हूं, स्टैट्स समटाइम लाई, समटाइम द स्टैट्स डू नॉट पेंट द राइट पिक्चर। The international stats with our local stats ऐसे नहीं हो सकते। They were playing in the same era. They used to face Bakar, Wasim, Shoaib, Sami, Bradley, Pollock and Donald, everybody. They have faced सारे। One more question, चलो इसको डिफरेंट वे में पोर्ट्रे करता हूं। स्टुअर्ट ब्रॉड recently retired, okay, 600 more than 600 wickets। वसीम अकरम कितनी विकेटें हैं? 500 and I guess 400 टेस्ट में मेरे ख्याल में कम है, वनडे में ज्यादा है। हु इज बेटर स्टैट वाइज? तो ब्रॉड बेटर है। हु इज बेटर? नहीं, तो ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में तो वसीम से बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है ना। So you think Broad is a better batsman? Oh, sorry, Broad is a better bowler in Test cricket than Wasim Akram? Yes. Okay. So Murli is a better bowler than Shane Warne? नहीं, शेन वॉर्न इज सकलैन। चलो फिर मुरली भी बैटर शेन वॉर्न से होना चाहिए, मुरली की ज्यादा विकेट्स है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न और मुरली के विकेट्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूं, लारा की एवरेज में और नंबर ऑफ रन्स में तो देखो 16 में एक बंदा 16 में डेब्यू कर रहा है, व्हेन ही वाज 16, दूसरा बंदा 21 इयर्स की एज में डेब्यू कर रहा है, ठीक है, 4 इयर्स वहां से मार्जिन दे दो। एक बंदा 3 साल पहले छोड़ है 37 में, तो एक्सटेंड करें। दूसरा 40 साल। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट के नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा खेली, ऑब्वियसली नंबर ऑफ गेम्स करने उसके रन रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप कंसिस्टेंटली जब रन्स करते हैं। दूसरी बात ये, इंडिया प्लेज मोर मैचेस देन एनी अदर नेशन। इंडिया बहुत मैच खेलता है भाई। अभी बाबर को ही अगर कंपेयर किया, बाबर इज लाइक he is going past Kohli in every other aspect, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कम होने की वजह से he would never go past Kohli। अब अगर आप एवरेज देखोगे ना, नंबर ऑफ मैचेस जो कोहली ने खेले और जो बाबर ने खेले, तो उसमें बाबर इज ऑन द हाईएस्ट। मैं यही कह रहा हूं, लेकिन वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा कोहली को, अगर यही रेशो रहा मैचेस का। वो फिर उस तरह से क्रॉस नहीं करेगा ना, रन्स को क्रॉस नहीं करेगा। अगर वसीम अकरम ने 168 मैचेस खेले होते टेस्ट मैचेस, वसीम अकरम की ब्रॉड से ज्यादा विकेट ना होती। वसीम अकरम की ब्रॉड से ज्यादा विकेट शायद होती, लेकिन नहीं उसमें देयर इज अनदर काउंटर क्वेश्चन एज वेल ना।
वसीम अकरम को अपने आप को उतना फिट रखना था ना कि ब्रॉड की तरह No, no, no. मैचेस They खेले। play more matches. नहीं दे प्ले बट स्टिल वसीम अकरम का बहुत लंबा कैरियर है। वसीम अकरम का कैरियर बहुत लंबा है, लेकिन वो बहुत इंजर्ड होता रहा। नहीं, श्रीलंका में इन्होंने जा के बाहर बैठते। नहीं, you're right. Listen, वसीम ने बहुत लंबा कैरियर गुजारा है। वसीम ने बहुत, ठीक है, फिटनेस इश्यूज आए हैं, लेकिन वकार का अगर आप बात करोगे तो आई वुड एग्री विद यू, वकार हैड इंजरी इश्यूज, नॉट वसीम। वसीम के उस तरह इंजरी इश्यूज नहीं थे। वसीम गॉट अनफिट वेरी सेल्डम, लेकिन वसीम कभी भी 168 टेस्ट मैचेस बेचारा नहीं खेल सकता था, बिकॉज हमें टेस्ट मैचेस मिलते ही कम है। लेकिन उसकी रीजन एक और भी है कि आप ये देखें कि वसीम वाज मोर इनटू वनडे इंटरनेशनल। वसीम ने वनडे भी तो बहुत ज्यादा खेले। टेस्ट क्रिकेट से इंटेंशनली जहां पे टफ कंडीशंस होती थी ना, टफ कंडीशन वेदर जहां पे जरा ज्यादा होता था, आप जहां पे इन्होंने मोहम्मद जाहिद को खिलाए रखा है, वसीम साहब 3 मैचेस बाहर बैठे रहे। Okay, Yunus Khan is a better batsman than Inzamamul Haq and Mohammad Yusuf. He Yes. scored more runs. स्टैट्स तो That is your point of view, and that is my point of view. I think so. That is not. स्टैट्स देखो, एट द एंड ऑफ द डे अभी आप देख लो कि यूसुफ मेरे ख्याल से तो ही इज वेरी एलिगेंट, सारी चीजें हैं, लेकिन यूनुस is a better नहीं, batsman. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग स्टैट्स देखते हैं। आज यूनुस को आप देख लो, पीपल आर रेटिंग हिम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी You give me your point of view as a batsman. As a batsman, you put your money on Yunus Khan or Mohammad Yusuf. Sorry, हम ये debate Yusuf और Yunus पे नहीं, I'm just trying to support my point यूसुफ of के view. साथ तो एक अपना रिलेशन भी है। देखिए, that's my point, यार. Obviously I'll go for Yusuf. That is my point. Stats sometimes they lie. They do not paint the whole picture. आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। आप ये देखो कि उस बंदे ने स्कोर किया कैसे है, उस बंदे ने किन कंडीशंस में स्कोर किया है। कंडीशंस तो दोनों के लिए। ऑस्ट्रेलिया में सबसे मैं आपको एक और वो देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसकी हैं? तेंदुलकर की हैं, because he played the most number of matches against Australia. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ने एक ही जितने मैच। No, that is where you're wrong. You can open that. You can just go No, I have seen that. I've also Okay, seen the that. audience can see that. They can go through the stats. जिन्होंने stats में जाना है वो stats में जाके देखेंगे, जिन्होंने अपनी logical बातों में अपना conclusion निकालना है वो अपने conclusion निकालेंगे। We have given our point of view. And this is where we differ. और हम ये इस पे differ करते ही रहेंगे, because for me somebody at the end of the day, for example, we are not like we'll be living for 30 more years. जो बंदा खोल के देखेगा ना वो यही कहेगा कि भाई तेंदुलकर 34,000 रन्स, इट्स नॉट इजी। 34,000 रन्स इज लाइक, आप मतलब यू आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। मेरे ख्याल में जो बंदा खोल के देखेगा, he would go through this like whole video, तो उसको समझ आएगा कि भाई हमारी वीडियो तो पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। I'm just saying that whenever there is a debate between Lara and Tendulkar, a lot of people rate Lara higher. People who really love cricket, who not only look at the stats. We can just do something else as well apart from this program, and we can just ask the people as well. Yeah, we can have a poll on this video, and we really welcome your comments on this video, particular this video पे हम बड़ा welcome करेंगे कि आप लोगों के ख्याल में who is the better batsman, who is the greatest of all time, या ये बात कम से कम settle हो जाए between Lara and Tendulkar, who is better. And then of course we'll be doing these sort of programs. Or of course, I mean, agar if I'm saying that Tendulkar is you having edge over Lara, so it does not mean कि Lara is not like Lara. Obviously, Tendulkar, मैं भी Tendulkar बहुत पसंद करता हूँ, but my pick is Lara and your pick is Tendulkar, and that's the bottom line. That's the bottom line.